ओके, नाउ यू पिन मी. ठीक है, पिन कर लीजिए आप नागेंद्र सिंह तोमर को, so that we can use the board. All right. So children, today we are going to study calculation of density of an ideal gas. In the previous class, we studied ideal gas equation and we studied how to solve numerical problems based on ideal gas equation. Today, let's study other applications of ideal gas equation. One of the important application is calculation of density of an ideal gas. Am I audible clearly? Tell me. Yes, sir. So, according to ideal gas equation, we have PV equals nRT. Is it visible, children? दिख रहा है क्लियर आपको? ठीक है, बोलो. Yes, Is it sir. visible clearly? Okay. So according to ideal gas equation, PV is equal to nRT. अब देखिए, we can also write it as P equals nRT upon V. But we know that density, symbol of density rho, is equal to mass upon volume. Mass upon volume. So this equation 1 can be further written as, equation 1 can also be written as P equals, इधर लिखता हूँ, P equals, we can write N as W upon molar mass, because number of moles N can be written as given mass upon molar mass. So we can substitute, we can replace this N by W upon M. Here we will write RT upon V. Now W upon V means mass upon volume is known as density. Thus we can write P equals density RT upon M. ठीक है, where capital M equals molecular mass or molar mass of the gas. ठीक, so pressure equals density into universal gas constant into Kelvin temperature upon molar mass, or we can write density rho equals density क्या रख दी here, so this will give Pm upon RT. ठीक है, density of any gas at given temperature can be written as the product of pressure and molecular mass of gas upon universal gas constant into Kelvin temperature. This is the relationship. Now, we know that M is constant for any gas because any gas have fixed molar mass. R is also constant. ठीक है, and at a given temperature, density would be directly proportional to pressure. So at given temperature, हम इन सभी कांस्टेंट को हटा दें. कांस्टेंट कौन सा? m है, r है, और if temperature is constant, then density of gas would be directly proportional to pressure. This is the relationship between density and the pressure of a gas at given conditions of temperature. इससे अब जनरल सी बात है बच्चों कि जब हम गैस को प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका मतलब गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर. ग्रेटर द प्रेशर अप्लाइड ऑन ए गिवन मास ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, ग्रेटर वुड बी द डेंसिटी ऑफ द गैस. नेक्स्ट application is, have you written this? Tell me, have you Yes, written sir. whatever is written on the board? Okay,
Yes, sir. All right. Now, another application is relationship between density and temperature of gas. Relationship between density and temperature of a gas. ठीक है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि as we increase the temperature, the volume of gas will increase, so density will get decreased. There is inverse relationship between volume, there is inverse relationship between density and temperature of gas. किसी भी गैस को हम जब हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल गेट इंक्रीज, so particles will move apart from each other. As a result, volume will get increased. When volume increase, that means density decreased. ठीक है, इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप. लेकिन न्यूमेरिकली हम इसको कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? देखिए, we know that density equals mass upon volume. ठीक है, mass upon volume. अब नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू, अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम, इससे हम एक और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि मास ऑफ गैस वुड रिमेन कांस्टेंट. जो मास हम लेंगे सिर्फ उतना ही मास रहेगा, मास अपने आप चेंज नहीं होगा. सो इफ वी टेक मास ऑफ द गैस एज कांस्टेंट, देन डेंसिटी ऑफ द गैस वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. हियर mass is constant. Mass is constant. ठीक है, if the mass of the given gas is constant, then the density of gas is inversely proportional to volume. According to Charles law, we know that. According to Charles law, क्या होता है बेटा? What is relationship according to Charles law? At constant pressure, the volume of gas is inversely proportional to temperature. That means inversely proportional temperature नहीं, according to Charles law, at constant pressure, volume of gas is directly proportional to Kelvin temperature. V is directly proportional to T. ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में है तो दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा. डिग्री सेल्सियस क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाई 1/273 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. आप इसके हिसाब से देखिए, बट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. देयरफॉर डेंसिटी is inversely proportional to temperature at constant pressure. देखिए, density is inversely proportional to V and V is directly proportional to T. ठीक है, V is directly proportional to T and density is inversely proportional to V. It means density is also inversely proportional to Kelvin temperature. ठीक, अब इससे हम कोई और इक्वेशन बना सकते हैं क्या? कि डेंसिटी है रो, सो डेंसिटी ले लिया रो, टेम्परेचर को इधर ले आया, टेम्परेचर इक्वल्स कांस्टेंट. ठीक है, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड केल्विन टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वुड बी ऑलवेज बी कांस्टेंट. और वी कैन राइट ρ1 T1 इक्वल्स ρ2 T2. So this equation can be used for solving numericals. अब ये दोनों कांस्टेंट है, रो एंड टी, प्रोडक्ट ऑफ रो एंड टी इज कांस्टेंट. सो एट सम अदर प्रेशर व्हाट विल इट बी? ρ1 और ये T1 टेम्परेचर हो गया, ρ1 T1 वुड बी इक्वल टू ρ2 T2 बिकॉज बोथ प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर कांस्टेंट. So these are the two applications of ideal gas equation.
Now children, let's solve some numericals based on this application. So write down the first question. The density of oxygen at NTP. Density of oxygen at NTP is 16 gram per decimeter cube. 16 gram per decimeter cube. To what temperature should it be heated? To what temperature should it be heated at a constant pressure so that the density becomes 8 gram per decimeter cube? ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है फिर से देख लीजिए. द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी. एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 273 केल्विन. नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 atm और 1.013 बार. एंड डेंसिटी इज गिवन. All right, let's see what is given. Pressure at constant pressure, it is given. At constant pressure, what is given? Temperature T1. Temperature T1 equals 273 Kelvin because NTP condition is given. ठीक है, उसके बाद डेंसिटी इज गिवन. तो डेंसिटी ρ1 इक्वल्स 16 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. Then when it is heated at constant pressure, then the density becomes 8 gram. So density ρ2 is 8 gram per decimeter cube. Means density is halved. Density क्या हो गई? आधी हो गई. आपको निकालना क्या है? T2. ठीक है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि ρ1 T1 इक्वल्स ρ2 T2. ठीक है, सो T2 इक्वल्स ρ1 T1 अपॉन ρ2. ρ1 की वैल्यू कितनी है? 16 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इंटू टेम्परेचर इज 273 केल्विन अपॉन ρ2 इज 8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, सो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल आउट. 8 2 जा 16. so 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5. 546 Kelvin. At temperature 546 Kelvin, the volume of the gas will get halved, will become half. समझ में आई मेरी बात? अगर किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का डेंसिटी 16 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है at NTP, then at what temperature the density will become 8 gram, that is half. This was the question. So कैसे निकालेंगे? We will use this equation. ठीक है, ρ1 T1 इक्वल्स ρ2 T2. आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा. So write down next question. The density of a gas is found to be, the density of a gas is found to be 1.56 gram per decimeter cube. The density of a gas is found to be 1.56 gram per decimeter cube. ठीक है, at 0.98 bar. Here pressure is given
0.98 बार। ठीक, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द, अच्छा टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, टेम्परेचर इज 65 डिग्री सेल्सियस और 65 प्लस 273, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 6 13, देन 2 प्लस 1 3, 338 कर लें। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गैस, व्हाट वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट, मोलर मास ऑफ द गैस टू बी कैलकुलेटेड। चलो ट्राई करो इसको बच्चों, जल्दी से ट्राई करके मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कहाँ हो भाई? आप लोग बोलते नहीं है क्लास में। मोनित समझ में आ गया क्वेश्चन? मोनित साहू, खुशी, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। मोनित कहाँ हो, कहाँ चले गए? मानव पटवा, मानव स्विच ऑन योर कैमरा। देखो साहब पकड़े गए साहब, अभी कैमरा चालू नहीं सर। हो नहीं रहा इनका। यस हाँ, सर। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन क्या है बताओ, व्हाट इज द क्वेश्चन? मानव क्वेश्चन क्या है? सर बता रहा। सर यहाँ पे प्रेशर बार को कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेशर को बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं सर, बार में है तो उसको एटीएम में करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, आप तो बार में करो। फिर सर सर आंसर आर की वैल्यू अगर एटीएम की उसमें रखेंगे तो फिर कन्वर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्यों, बार वाली वैल्यू क्यों नहीं याद है आपको? बार के टर्म्स, बार और डेसीमीटर क्यूब के उसमें वैल्यू क्या है आर की? 0.0831। ओके सर। सर आंसर हाँ 44.7 ऐसा कुछ है। हाँ, बिल्कुल सही आपका आंसर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, 44.7 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो लेट्स सी what we have given. Rho 1, that is density 1 is equal to 1.56 gram, pressure is 0.98 bar, temperature is this much, मोलर मास आपको निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला अभी डिराइव करके क्या बताया था कि मोलर मास या डेंसिटी इक्वल्स पी एम अपॉन आर टी, ये इक्वेशन आया था। ठीक, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन का ही एप्लीकेशन है, वो मॉडिफाइड हुआ है। सो वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन आर टी, और मोलर मास इक्वल्स रो आर टी अपॉन पी, रो आर टी अपॉन पी, सब्सटीट्यूट द वैल्यू। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी है? 1.56 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, इंटू आर की वैल्यू बार और डेसीमीटर क्यूब के टर्म्स में कितनी होती है? 0.0831। ठीक है,
इनटू टेम्परेचर दिया हुआ है आपको कितना 338 केल्विन अपॉन प्रेशर इज गिवन 0.98 बार। यहाँ भी देखिए आर की यूनिट में क्या आएगा, मैं यूनिट लिखता हूँ, आर की यूनिट हो जाएगी बार डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो केल्विन इनवर्स और केल्विन ये कट गया। ठीक, अब उसके बाद डेसीमीटर इनवर्स क्यू और डेसीमीटर कैंसिल आउट हो गया। ठीक, बार बार कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा आपको यूनिट में, पर मोल। तो मोलर मास की यूनिट क्या होती है, पर मोल। इसका मतलब आपने वैल्यूज सही सब्स्टिट्यूट किए। पहले आप सारी यूनिट्स को कैंसिल आउट कीजिए। यूनिट को कैंसिल आउट करने से जो यूनिट बच रही है, क्या वो यूनिट इधर जो क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं उसकी है कि नहीं। अगर आपको उधर की यूनिट सही आ रही है, इसका मतलब आपने वैल्यू सही सब्स्टिट्यूट की है। तो मोलर मास की यूनिट क्या होगी, पर मोल। ठीक, इसका मतलब वैल्यू सही सब्स्टिट्यूट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कीजिए आप, आपको आंसर आएगा 44.66, ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राम बचा है ना, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल आपकी यूनिट आ गई मोलर मास की। ओके, चलो एक अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन देता हूँ, इस बार सबके आंसर आने चाहिए और जल्दी से करेंगे आप फटाक से, क्योंकि आपके पीरियोडिक के तो नंबर बहुत अच्छे आते हैं और यहाँ क्लास में आंसर बोलने वाला कोई नहीं होता है। 2-3 बच्चे ही हैं जो आंसर बोलते हैं, बस बाकी सब पता नहीं कहाँ रहते हो तुम। अगर ऑनलाइन क्लास में ऐसे पढ़ोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो सब्जेक्ट का तो कवाड़ा हो जाएगा आपका, है ना। इसलिए ऑनलाइन क्लास में आपको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, टू सेपरेट बल्ब, टू सेपरेट बल्ब्स कंटेन गैस ए एंड गैस बी। दो बल्ब हैं, एक में गैस ए फिल्ड है, दूसरे में गैस बी फिल्ड है। ओके, two separate bulbs contain gas A and gas B. The density of gas A is twice as that of gas B. The density of gas A is twice as that of B. The molecular mass of A, the molecular mass of A is half as that of B. Okay, if the temperature is constant, if the temperature is constant, what is the ratio of pressure of A and B? What is the ratio of pressure of A and B? देखो दिया क्या क्या है इसमें आपको, डेंसिटी ए की क्या है, डबल है एज कंपेयर टू बी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज हाल्व एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। प्रेशर का रेशियो निकालना है। श्रवणी जल्दी से निकाल लो। चलो भाई, ऑल मैथमेटिशियंस, जिन्होंने जिन्होंने मैथ्स लिया है, पीसीएम लिया है, अरमान रेशियो निकालो जल्दी। धनंजय,
आया किसी का आंसर बच्चों? सर 4:1। 4:1. रुमिशा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. गुड, बहुत अच्छे बेटा. ठीक है, अब देखिए सर 1:4। गिवन 1:2 नहीं आएगा, 4:1 आएगा बेटा. यस सर 4:1 ही बोला है। हाँ ठीक है, 4:1 करेक्ट. ठीक है, सो वी नो दैट क्या इक्वेशन हमारे पास, डेंसिटी इक्वल्स पीएम अपॉन आरटी. ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स प्राइम मिनिस्टर अपॉन राजस्थान इनटू तमिलनाडु. ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, पीएम अपॉन राजस्थान एंड तमिलनाडु. ठीक, अब इसके बाद देखिए डेंसिटी इक्वल टू दिस हो गया. अब इसको आप अलग अलग के टर्म्स में लिख दीजिए. सो डेंसिटी ऑफ ए इक्वल्स पी ए एम ए अपॉन आर टी. ठीक है, क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर दिया है, नहीं दिया है. ठीक है, ओके. एम ए और एम बी. सिमिलरली रो बी इक्वल्स पी बी एम बी अपॉन आर टी. ये हो गया. अब रेशियो दिया है, देखिए रेशियो क्या दिया है कि डेंसिटी ऑफ ए अपॉन रो बी इक्वल्स 2 दिया है. रेशियो इज डबल, मतलब क्या हुआ कि रो ए अपॉन रो बी इक्वल्स 2. और दूसरी चीज क्या दी है कि एम ए अपॉन एम बी इक्वल्स 1/2. ये दो चीजें आपको दी हुई है. ठीक है, एक चीज दी है कि रेशियो कितना है डेंसिटी का, मतलब पी ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ पी बी. सिमिलरली एम ए इज हाफ एज दैट ऑफ एम बी. ओके, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए. तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 क्या हो जाएगा, रो ए अपॉन रो बी इक्वल्स पी ए एम ए अपॉन आर टी इंटू आर टी अपॉन पी बी एम बी. आर टी कैंसिल आउट. तो रो ए अपॉन रो बी इक्वल्स पी ए अपॉन पी बी. ठीक है, इंटू एम ए अपॉन एम बी. इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए. अब इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स, इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, पी रो ए अपॉन रो बी इंटू एम बी अपॉन एम ए. ठीक है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स रो ए अपॉन बी कितना है 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2/1. ठीक है, एम ए अपॉन एम बी वॉज 1/2. सो एम बी अपॉन एम ए कितना हो जाएगा 2/1. दिस विल बी इक्वल टू 4. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पी ए 4 है तो पी बी की इसको हम 1 लिख सकते हैं, 4/1. 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4/1. सो पी ए रेशियो पी बी इक्वल्स 4:1. बोलो बच्चों, समझ में आया? यस सर. देख लो एक बार आप. अगर कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ सकते हो. वेदांशी, और कौन Yes, कौन sir. है? दिशा, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. दिशा, ओके. वेदांशी, Yes, sir. गर्वित, समझ में आया? यस सर. ओके,
निशांत, यस निशांत हो सर। क्लास में? हाँ सर हूँ। आ गया समझ में? हाँ सर। अरे समझ में आ गया कि आ गया? ओके, गुड. So children, this was application of ideal gas equation and some questions based upon ideal gas equation. Let's start another law, that is Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure of gases. After ideal gas equation, let's start another law, that is Dalton's law of partial pressure of gases. Partial pressure of gases. This law was given by John Dalton, as the name suggests, Dalton's law. ठीक है? What is the statement of Dalton's law of partial pressure? If two non-reacting gases, two or more, listen, if two or more non-reacting gases are kept in a same container which is closed, then the total pressure exerted by the gaseous mixture would be equal to the partial pressures of individual gases when they are kept in same container at similar conditions of temperature. So first you write down the statement. Write down the statement of Dalton's law of partial pressure. If two or more gases which do not react chemically are kept in a closed vessel, then the total pressure of gaseous mixture is equal to the sum of partial pressures that each gas will exert when enclosed separately सर सर रिपीट पार्शियल कर दो एक बार. एक बार मैं पूरा कर दूं फिर दोबारा बोल दूंगा बेटा. when enclosed separately in the same vessel at constant temperature. Okay. If two or more gases which do not react chemically are enclosed in a vessel, the total pressure of gaseous mixture is equal to the sum of partial pressures that each gas will exert when enclosed separately in the same vessel at constant temperature. Okay, so let P1, P2 and P3 be the partial pressures of three gases A, B and C respectively. ठीक है? When these three gases are kept in, when these gases are enclosed
in a same container, in a same container of volume V, then the total pressure exerted by the gaseous mixture, then the total pressure exerted by the gaseous mixture would be, अब देखिए यहाँ पे लिखिए टोटल प्रेशर P इक्वल्स P1 प्लस P3, यही है Dalton's law of partial pressure. When two or more non-reacting gases are enclosed in total pressure exerted by the gaseous mixture will be equal to the sum of individual pressures of gases kept in same container at same temperature. For example, इसको हम एक डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। प्रेशर कैसे मेजर करते हैं बच्चों? नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस, जल्दी से बोलो। सर बैरोमीटर। मैनोमीटर, बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एंड मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गैस प्रेशर। ठीक, ये हमने एक मैनोमीटर बना लिया। ओके, अब इसमें यहाँ पे मान लीजिए मर्करी लेवल है और ये इसकी हाइट होगी। राइट, तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये सी, जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था तो लेवल ये होना चाहिए, लेकिन जब गैस आपने फिल कर दिया तो प्रेशर, गैस के पार्शियल प्रेशर की वजह से ये प्रेशर, ये हाइट बढ़ गई। सो दिस विल बी प्रेशर ऑफ P1 गैस, मतलब पहली गैस जो आपने लिया P1। सिमिलरली अगर हम सेम मैनोमीटर ले लें और उसमें दूसरी गैस फिल करें सेम टेम्परेचर पे, देखिए दूसरी गैस को मैं डार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जबकि पहली गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया था। सेम मैनोमीटर में हमने दूसरी गैस ले ली बच्चों। ठीक, अब इसका देखिए पार्शियल प्रेशर मान लीजिए कितना है, ये हमारी गैस बी के लिए हो गया और ये हो गया इसका प्रेशर। तो लेट दिस हाइट विल बी P2, ठीक है, इन mm ऑफ मर्करी यूनिट। सो दिस विल बी P2, दिस विल बी फॉर गैस A एंड दिस विल बी फॉर गैस B। ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A P1 एंड दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेम मास गैस को सेम मैनोमीटर में मिक्स करके डाल लिया, फिल किया इसको। और इसमें क्या हो गई, हाइट ज़्यादा हो गई, ठीक है। और इसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे कौन से होंगे, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ गैस A है, इधर सिर्फ गैस B है, यहाँ पे गैस A प्लस गैस B बोथ आर फिल्ड।
और ये जो हाइट होगी दैट हाइट विल रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर P, P total. So P total is equal to P1 plus P2. This is the pictorial representation of Dalton's law of partial pressure. That is P total equals P1 plus P2, where P1 and P2 are the partial pressures of individual non-reacting gases. समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's explain the partial pressure of gases in terms of mole fraction of gases. Partial pressure of gases in terms of mole fraction. इसके लिए एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा. सो partial pressure of gases in terms of mole fraction of gas. मोल फ्रैक्शन याद है कि नहीं है? मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? x से. What is mole fraction? It is the ratio of number of moles of gas to the total number of moles in the solution or in the mixture. ठीक है, सेम वैसे ही रहेगा. लेट P1, P2, P3 be the partial pressures of three non-reacting gases, A, B and C respectively. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PA इक्वल्स, ये कहाँ से आ गया? आइडियल गैस इक्वेशन से. PA इक्वल्स NART अपॉन VA. ठीक है, अब सभी गैसेस का हम वॉल्यूम सेम लेंगे, इसलिए जरूरत नहीं है VA लिखने की. ठीक है, लेट P1, P2, P3 बी द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ three non-reacting gases A, B and C respectively if the volume of gases remains same. If volume of gases be same, that is V, then PA is equal to NART upon V. Similarly, PB equals NBRT upon V and PC equals, अच्छा PA लिख ले या P1 लिख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड. P1, P2, P3. ठीक है, P3 इक्वल्स क्या हो जाएगा? NCRT अपॉन V. NCRT आपकी बुक नहीं है, वो NCERT होता है, ये NCRT है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा? P टोटल इक्वल्स P1 प्लस P2 प्लस P3. ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो. सो P1 की जगह पे क्या लिख दीजिए? NART अपॉन V प्लस NART अपॉन V. नेक्स्ट NBRT अपॉन V प्लस NCRT अपॉन V. ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल कर दीजिए, RT अपॉन V को बाहर निकाल लीजिए. तो P टोटल इक्वल्स P1 प्लस P2 प्लस RT तो है ये, इसको निकाल लीजिए सीधे. क्या? RT अपॉन V और NA प्लस NB प्लस NC, दैट इज RT अपॉन V इंटू N. ठीक है, where N is total number of moles और NRT upon V, where N equals Na plus Nb plus Nc is total number of moles of gases in the solution.
ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पीए ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए निकालना है। क्या हो जाएगा, पीए इक्वल्स, पीए का फॉर्मूला लिख दीजिए, NaRT अपॉन V अपॉन टोटल नंबर ऑफ, पीए इक्वल्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये पीए का निकाल लिया, प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रेशर, NRT अपॉन V, मीन्स V अपॉन NRT, डिवाइड कर दिया। ठीक है, पीए इक्वल्स कितना हो गया, पीए इक्वल्स NaRT अपॉन V, ये वाला फॉर्मूला लिखा, अपॉन टोटल प्रेशर लिखा, टोटल प्रेशर कितना है NRT अपॉन V, चूंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसलिए मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया, V कैंसिल आउट, दिस गिव्स RT कैंसिल आउट, Na अपॉन N, Na अपॉन N को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, गिव number of moles of given of the component upon total number of moles is known as mole fraction of the component. So ये क्या हो गया, Pa is equal to Na upon N और that is equal to A। नहीं, Pa नहीं है, Pa अपॉन P टोटल है ये। ठीक है, Pa अपॉन P टोटल किया तभी तो ये हो गया Pa और ये हो गया P टोटल। PA अपॉन P टोटल इक्वल्स NaRT अपॉन V इंटू V अपॉन NRT इक्वल टू Na अपॉन N इक्वल टू X। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो PA इक्वल्स P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। So this is the relationship between the partial pressure of gas and mole fraction of the gas. That means the partial pressure of gas is equal to product of mole fraction of the gas in the mixture multiplied by total pressure. Similarly, we can calculate PB. So PB means partial pressure of component B equals P total into mole fraction of component B. Similarly, PC equals P total into mole fraction of component C. ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला निकल आया बच्चों कि किसी भी गैस का मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर कितना होगा, that will be equal to the product of total pressure of the gaseous mixture into mole fraction of the gas in vapor phase. ये समझ में आया, बोलो। यस सर। सर एक बार ऊपर से रीड कर दीजिए सर वापस, ये जो लिखा है सर। हाँ ठीक है, देखिए बिल्कुल ये लिखा हमने PA अपॉन P टोटल इक्वल्स, PA के लिए हमने फॉर्मूला भी, आप पीछे जाके देखो, PA इक्वल्स क्या था, Na अपॉन RT अपॉन P टोटल का फॉर्मूला क्या निकला था, डिराइव किया था V NRT अपॉन V। अब इसको डिनोमिनेटर पुट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, V अपॉन NRT हो गया, ये NaRT अपॉन V इंटू V अपॉन NRT। यहाँ से RT कैंसिल आउट, V and V कैंसिल आउट, इट बिकम्स Na अपॉन N। Na अपॉन N इज ऑल्सो नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। ठीक है, इट मीन्स PA अपॉन P टोटल इक्वल्स XA। सो PA इज इक्वल टू P टोटल इंटू XA, PB इज इक्वल टू P टोटल इंटू XB, PC इक्वल्स P टोटल इंटू XC। धनंजय आगे समझ में? यस सर। अच्छा बच्चों, एक चीज मैंने आपको 10th में पढ़ाया था, जब वो बताया था आपको कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बताया था। ठीक है, और उसमें हमने बताया था कि गैसेस के ऊपर हम इन्वर्टेड ट्यूब लगा देते हैं तो ऑक्सीजन गैस ऊपर जाके फिल हो जाती है और इसी तरह से दूसरे में हाइड्रोजन गैस ऊपर टेस्ट ट्यूब में जाके फिल हो जाती है। याद है वो फिगर, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ाया था? देखिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एक्सेट्रा कैन बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये टर्मिनोलॉजी याद आई 10th की, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर। कैसे करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर? एक जार ले लिया, उसमें वाटर फिल्ड है, ठीक है, और वाटर में एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं,
एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके रख लेते हैं, ठीक। और इसमें जहां भी आपने रिएक्शन किया उससे एक डिलीवरी ट्यूब लगा के डिलीवरी ट्यूब को अंदर यहाँ पे फिट कर देते हैं। अब सपोज यहाँ पे मान लीजिए गैस, हाइड्रोजन गैस बन रही है। कैसे? जब हमने जिंक को रिएक्ट किया H2SO4 डाइल्यूट के साथ, देन द प्रोडक्ट विल बी ZnSO4 गैस, ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। हम कैसे कलेक्ट करेंगे इस हाइड्रोजन गैस को? ठीक है, द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन कैन बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इसके लिए हमने क्या किया, जार ले लिया है और जार में हमने क्या भर दिया, इसमें वाटर भर दिया, ठीक है। और अंदर एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके रख दिए। तो ये जो हाइड्रोजन गैस आएगी यहाँ से, ये हाइड्रोजन गैस इज नॉन soluble gas, it do not dissolve in water. As the bubbles of hydrogen gas rise up, the level of water will fall down inside the test tube. जैसे जैसे हाइड्रोजन ऊपर जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन के बबल्स ऊपर जाएंगे, they will occupy the space, ठीक है, at the top of this inverted test tube and the level of water will fall down. अच्छा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगी बच्चों, तो इस हाइड्रोजन गैस की वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल बी ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, दोनों का मिक्सचर होगा। हाइड्रोजन गैस आएगी तो ऊपर हाइड्रोजन गैस जाके कलेक्ट होगी और साथ में वाटर वेपर्स भी इवेपोरेट होंगे कुछ। सो द टोटल प्रेशर विच विल बी प्रेजेंट इनसाइड दिस इन्वर्टेड ट्यूब वुड बी equal to partial pressure of hydrogen gas and partial pressure due to presence of water vapors, and the pressure which is due to presence of water vapors is known as aqueous tension. Aqueous tension, ठीक है, the pressure exerted by water vapors is known as aqueous tension, ठीक है। अब see what is applications of Dalton's law of partial pressure. डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है? यही है, टू डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैसेस। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ हम क्यों पढ़ते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ टू डिटरमाइन द partial pressure of dry gas, partial pressure of dry gas। अभी देखिए, जो हमने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया उसमें क्या था, जो ऊपर टोटल प्रेशर निकलेगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्लस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन प्रेशर ड्यू टू वाटर वेव्स। अब so how can we find the partial pressure of dry gas? So PA would be equal to P total minus aqueous tension, that is partial pressure of dry gas, partial pressure of dry gas, ठीक है, equal to total pressure of the gaseous mixture which contains gas molecules plus molecules of water vapors. So this is the application of Dalton's law. I think the time is much enough. It's 5 o'clock, so we should leave the class. सर वो लास्ट लाइन क्या लिखा है, Alright, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस? हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस मतलब जिसमें वाटर वेपर्स नहीं हो। जो हमने ऊपर कलेक्ट किया था उसमें क्या था, गैस के मॉलिक्यूल्स में थी प्लस वाटर वेपर्स भी थे। उसमें से ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वाटर के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल्स P टोटल माइनस एक्वस टेंशन। ओके सर। चिल्ड्रन, ओके, तो चिल्ड्रन इस